Hello everyone. Today's use topic is nuclear mass and its determination. We find the nuclear mass by the help of mass spectrograph. Today we discuss about brain spectrograph. Firstly, we know about that its purpose. Then purpose of mass spectrograph used to measure the atomic mass of positive ion या फिर positive charge particle. We measure atomic mass of positive charge particle. Brain base is in 1933. Before that, some scientists tried to find out the atomic mass, but its value, its accuracy is less as compared to brain-based spectrograph. Before that, we find mass by the help of Avogadro number. Avogadro number. Avogadro number is equal to 0.623 into 10 raised power minus 23. By the help of Avogadro, we get mass of atom, but its accuracy is left. That means it give a rough measurement, not give a accuracy, only give rough measurement about the mass of atom or nuclear mass. According to that, 1 mole of molecule is equal to 0.23 into 10 raised power 23 molecule. Now we discuss about atom. So first find the mass number. Let's consider carbon. Mass number of carbon is 12. Okay. Then C12. 12 is the mass number of carbon atom. That means it's in gram atomic mass of carbon it should be 12 gram. And we find the mass, we find atomic number, then atomic number should be equal to, atom of one mass should be equal to, one atom is equal to molecular weight divided by Avogadro number, 23 into 10 raised power 23. Then we get a mass of one atom. By the help of you get mass of atom, but it's give roughly result. It gives roughly result, not exact accuracy. And in case of if any atom have isotope, as we discussed the example of hydrogen atom, it has three isotope: H11, H12, H13, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम. मेरे पास क्या होगा, तीन आइसोटोप होंगे इसके. तो मेरे पास आइसोटोप क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, और वी से दैट डिफरेंट एटॉमिक मास. ओके. अगर किसी एटम का आपके पास क्या होगा, आइसोटोप एग्जिस्ट करेगा, तो जो एवोगैड्रो नंबर वाला मेथड है, इससे आप एक्यूरेट मास नहीं फाइंड आउट कर सकते. ठीक है. तो हमारा पहले क्या काम होगा, जैसे और हमारे पास क्या होगा, जैसे बेन ब्रिज स्पेक्ट्रोग्राफ है, इसका भी फर्स्ट काम क्या होगा आपके पास, फर्स्ट स्टेप इज सेपरेट द आइसोटोप, सेपरेट आइसोटोप्स ऑफ एटम. फर्स्टली हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट करेंगे. अगर मैं इसके बेन ब्रिज के प्रिंसिपल की भी बात करें, तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, टू सेपरेट आइसोटोप ऑफ एलिमेंट एंड फाइंड इट्स मास ऑफ आइसोटोप ऑफ इट्स एलिमेंट. तो इसके जो डिफरेंट एलिमेंट है, उनके क्या करोगे आप, मास फाइंड आउट करोगे. ओके. हमारे पास क्या होगा, अब इसके अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, तो कंस्ट्रक्शन में मेरे पास क्या होगा, बेन ब्रिज स्पेक्ट्रोग्राफ में आप यूज़ करोगे तो क्या होगा, आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब होगी. Firstly, discharge tube, velocity selector, slit, and we need electric or magnetic field. Electric field we provide by the help of electrodes, or magnetic field by help of electromagnet. Okay. हमारे पास अब क्या होगा, जैसे एपरेटस है मास स्पेक्ट्रोस्कोप, डिस्चार्ज ट्यूब का काम क्या होता है, डिस्चार्ज ट्यूब, वेलोसिटी सिलेक्टर. वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होगी, एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस होगी.
वेलोसिटी सिलेक्टर होता है, जैसे आपके पास क्या होगा, वेलोसिटी को ही वहाँ से पास कर, मतलब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को सिलेक्ट करेगा, जिस जिस एटम के पास क्या होगी वो वेलोसिटी होगी वो क्या करेगा, फर्दर उसको पास कर देगा। अब हमारा पहला काम है, हमारे पास क्या करेंगे, सेपरेट आइसोटोप। देन मेरे पास सेपरेट करने के बाद मेरे पास क्या होगी, इसकी कंस्ट्रक्शन फर्स्टली डिस्चार्ज टू। डिस्चार्ज ट्यूब का काम क्या होगा, इट जनरेट्स पॉजिटिव आयन बीम। ओके, ये क्या करेगी, पॉजिटिव आयन बीम को क्या करेगी, जनरेट करेगी। एंड इट्स द पॉजिटिव आयन हैज डिफरेंट मास एंड डिफरेंट वेलोसिटी, एवरी आयन हैज different mass and different velocity. Now we apply electrodes which provide a high potential difference in a discharge tube. And this potential difference helps in accelerate of positive ion. That means हमें क्या करना है, एसिलेट कराना पॉजिटिव आयन को। तो एसिलेट कराने के लिए क्या करोगे, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे एसिलेट करा रहे हैं। ठीक है, पहले देखिए मेरे पास क्या होगा, इसके अगर डायग्राम की बात करें, दिस वन, ये मेरे पास क्या होगी, स्लिट होगी। जस्ट वेट, नाउ वी डिफाइन लाइक दैट। ये क्या होगी, S1 और S2 आपके पास क्या होंगी, स्लिट होंगी। ये क्या स्लिट का काम क्या करेगा, मेरे पास एक नैरो बीम, एक कोलिमेटेड बीम प्रोवाइड करेगा, एक नैरो बीम प्रोवाइड करेगा यहाँ पे। उसके बाद ये नैरो बीम कहाँ पे जाएगा, S1 और S2 स्लिट से पास करने के बाद एक फाइन बीम के लिए हमने क्या कर दिया, 2 स्लिट को यूज कर दिया। देन उसके बाद ये किसके पास जाएगा, ये क्या है मेरे पास, वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर में मेरे पास P1 और P2 ये किसका काम करेंगे, इलेक्ट्रोड का। P1 P2 क्या इलेक्ट्रोड है, जो क्या कर रही है, आपके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या होगा, आपके पास आयन को क्या करेगा, जो पॉजिटिव आयन है उसको क्या करेगा, एसिलेट करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर मेरे पास जो वेलोसिटी सिलेक्टर है, इसके अंदर आपके पास 2 फील्ड मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सिंपली हम वेलोसिटी सिलेक्टर की बात करें, दिस वन, ये क्या हो गया आपकी स्लिट S1 और S2। यहाँ से आपका फाइन बीम आएगा, फाइन बीम आने के बाद ये क्या होगा, वेलोसिटी सिलेक्टर। यहाँ पे मैंने क्या कर दी, इलेक्ट्रोड, ये क्या कर दिया आपने, 2 इलेक्ट्रोड यूज़ कर दिए, क्या होगी P2, ये मान लिया मेरे पास P1, नेगेटिव पॉजिटिव। और जो वेलोसिटी सिलेक्टर है इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। मतलब इसमें क्या होगा, आपके पास दोनों फील्ड होंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फील्ड आप इलेक्ट्रोड की हेल्प से जनरेट करोगे। और मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, या फिर हम बोल सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, नेगेटिव से कहाँ पे मूव करेंगे, पॉजिटिव पे। और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे क्या होगा आपके, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब मेरे पास क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब राइट साइड में, नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड में। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मोशन क्या होगा, एक टाइप से राइट टू लेफ्ट डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, किसके हेल्प से, इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, या परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, यहाँ पे जैसे पेपर यूज कर रहे हैं इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइक दैट। ऐसे क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका। ये क्या होगा, इसका मतलब मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। अगर आप लेफ्ट हैंड रूल की बात करें तो लेफ्ट हैंड रूल क्या डिफाइन करता है, दिस वन, ये क्या शो करेगा, करंट की डायरेक्शन को। जो मेरे पास फर्स्ट फिंगर है किसको शो करेगी, आपकी दिस वन, फर्स्ट फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी। एंड जो थंब है ये किसको शो करेगा, आपका ये शो करेगा आपके पास फोर्स की डायरेक्शन को। अब मैंने क्या किया है, दिस वन इज मैग्नेट will apply like that. This one is magnetic field जो कि है perpendicular plane of paper and this direction is show the direction of current and force will be applied is left to right ना। then तो मेरे पास मैग्नेटिक जो फोर्स है वो अप्लाई होगा कहाँ से, लेफ्ट टू राइट। और इलेक्ट्रिक जो फोर्स था या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कहाँ से कहाँ अप्लाई हो रहा था, राइट टू लेफ्ट।
तो मेरे पास अगर इलेक्टिव फोर्स की बात करूँ, E इज इक्वल टू क्या होगा, राइट टू लेफ्ट, और E किसके इक्वल होता है, F बाई क्यू। क्यू क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर रहे हो या फिर पॉजिटिव आयन को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, एफ ई, फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, क्यू और ई। इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के डायरेक्शन क्या होगी आपके पास, सेम होगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या होगा, वेलोसिटी सिलेक्टर से मैंने क्या कर दिया, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया आपने, और यहाँ पे क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया, ठीक है। अब मेरे पास वेलोसिटी सिलेक्टर का काम क्या, कोई ना कोई वेलोसिटी को सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंडीशन को बैलेंस करना पड़ेगा। एक मैकेनिकल कंडीशन है, दो फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनको बैलेंस करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों क्या आने चाहिए, आपके इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब मेरे पास अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करो तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है आपका, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, और वी बी क्या होंगे, परपेंडिकुलर, तो मेरे पास क्या हो गया, क्या आ जाएगा, क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास क्या आ गया, क्यू वी पी। तो हमारे पास यहाँ पे दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, तो हमें एक कंडीशन अप्लाई होगी, मेरे पास क्या होगा, दोनों की वैल्यू सेट करने के लिए दोनों की वजह से फोर्स अप्लाई होगा, तो मेरे पास फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स क्या होगा, क्यू इन टू ई, मैग्नेटिक फील्ड से क्या आएगा, क्यू वी बी, क्यू से क्यू कैंसिल, वी किसके इक्वल आ गया, ई बाई पी। इसका मतलब वेलोसिटी सिलेक्टर ने आपको कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड की है, ई बाई, ई भी आप अप्लाइड करोगे, पी भी अप्लाइड करोगे, दोनों की वैल्यू आपको नोन होगी एक्सपेरिमेंटली, ओके। v इज इक्वल टू ई बाई वी, इतनी वेलोसिटी क्या कर रहे हो आप, प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये क्या होगा, वेलोसिटी सिलेक्टर से जिनकी वेलोसिटी v होगी वही क्या करेंगे, वहाँ से पास करेंगे। अब वेलोसिटी सिलेक्टर से मेरे पास क्या होगा, दिस वन, यहाँ से जिनकी वेलोसिटी क्या है, e इज इक्वल टू, जैसे ये लाइन ये शो कर रही है, v इज इक्वल टू ई बाई वी, जो मेरे पास क्या होगा, जिनकी वेलोसिटी ई बाई बी के इक्वल होगी वो क्या होगा, बिना डिफ्लेक्ट हुए, विदाउट डिफ्लेक्टेड, विदाउट एनी डेविएशन, पास फ्रॉम स्लिट S3, तो क्या करेंगे, S3 स्लिट से पास कर देंगे। एक सेकंड केस आएगा कि मेरे पास हो सकता है कि वेलोसिटी किसी के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो, जरूरी नहीं सबका मेरे पास क्या होगा, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की राइट टू लेफ्ट, मैग्नेटिक फील्ड की लेफ्ट टू राइट। अगर आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो आपके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लेफ्ट से राइट में जाएंगे, दिस वन। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कम है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी, अगर आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो राइट टू लेफ्ट, मतलब फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फॉलो करेगा, राइट टू लेफ्ट, और मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फॉलो करेगा, किसको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आपकी, लेफ्ट टू राइट को फॉलो करेगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या हो गया, किससे पास करेंगे, वेलोसिटी सिलेक्टर से, और मेरे पास ये क्या है, S3 स्लिट, ये भी क्या हो गया, फाइन बीम प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मान लिया बी, मान लो ये मेरे पास क्या है बी, तो मेरे पास क्या आ गया, v इज इक्वल टू ई बाई बी। उसके बाद मेरे पास जो है अनडाइवर्टेड है, अनडाइवर्टेड जो भी आयन है वो क्या होंगे, S3 स्लिट से पास करेंगे, और यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा, सेम होगा। अब जो ये क्रॉस है, क्रॉस किसको शो करेगा कि मैंने यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड किया है, परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसी फॉर्म में अप्लाई कर रखा है। अब यहाँ पे जितने भी आयन आएंगे सबकी वेलोसिटी क्या है, सेम है, बट सबका मास जरूरी नहीं है सेम मिलेगा आपके पास, ठीक है। मास में फाइंड आउट करना है तो सबकी वेलोसिटी क्या सेम है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है, हमने अप्लाई किया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको नोन होगी। अब जैसे आपके पास पार्टिकल आएंगे इस फॉर्म में आ रहे हैं, आपको क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होंगे, डेविएट होंगे मेरे पास। ऐसे टेंडेंसी होते हैं हमेशा, जैसे कोई ऐसे सर्कल फॉर्म में बनाते हैं तो हमेशा क्या होगी, जैसे यहाँ पे पार्टिकल है, इसकी टेंडेंसी होगी क्या होगा, स्ट्रेट मूव करेगा, देन यहाँ पे भी क्या होगा, स्ट्रेट मूव करेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करे, इसकी डायरेक्शन को क्या होगा ना, यहाँ पे चेंज कर रहा है, तो मेरे पास क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेंगे, जितने भी आयन होंगे सभी क्या करेंगे, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेंगे। इसमें पूरे जो इसमें क्या होगा, हर जगह क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। यहाँ पे मैंने क्या लगा रहा है, ये क्या हो गया, आपके पास एक फोटोग्राफिक प्लेट है, तो आपके पास क्या होगा, मान ली एक पार्टिकल आ रहा है, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो किया, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे किसी ना किसी पॉइंट पे जाके क्या होगा, स्ट्राइक करेगा, मतलब एक मेरे पास क्या होगा, कोई ना कोई प्रोपोर्शन शो करेगा।
तो ये क्या आपके पास फोटोग्राफिक प्लेट, मान लिया क्या हो गया, इस पॉइंट पे गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस आ गई एक। अब क्या होगा, मान ली ये फर्स्ट वाला है, तो मैं इसको क्या कर सकते हैं, पूरे को एक सर्कुलर कंसिडर कर सकते हैं, मतलब एक सर्कल कंप्लीट करके देख सकते हैं इसका। तो यहाँ से क्या होगा, इसकी रेडियस आ जाएगी, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसकी रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रेडियस की हेल्प से आपको क्या करना है, मास फाइंड आउट करना है। हमने बोला मेरे पास क्या करेगा, ये क्या करेगा, सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। और यहाँ पे कौन सा लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी लग रहा है। सर्कुलर पाथ का मतलब क्या होगा आपके पास, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। वैसे सेंट्रीपिटल क्या होगा, जो मेरे पास जो एटम है, आयन है, कोई भी पार्टिकल उसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, टुवर्ड्स सेंटर फोर्स लगेगा, उसको क्या बोलोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलोगे। यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे हमने बोला हमने मैग्नेटिक फोर्स भी लगाया ताकि वो एक सर्कल पाथ मैग्नेटिक फोर्स की वजह से आए। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। यहाँ पे क्या होगा आपके पास mv²r, ये क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये क्या होगा आपके पास मैग्नेटिक फोर्स। तो मेरे पास क्या होगा, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। तो mv²/r इजिकल टू किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू वी। वेलोसिटी क्या होगी, वी रहेगी, उनकी जितने भी पार्टिकल आएंगे सबकी वेलोसिटी सेम होगी। स्टार्टिंग में जो आयन आ रहे थे सबकी वेलोसिटी डिफरेंट थी, वेलोसिटी सिलेक्टर ने क्या किया, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के जो आयन है उनको क्या होगा, फर्दर पास किया स्लिट से S3 से। और इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मान लिया मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया था, B1 क्या होगा, यहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M कैंसिल, क्या एक V से V कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या होगा, mv/r इजिकल टू क्यू पी। तो M किसके को लाएगा, यहाँ से Q/r/p। क्यू क्या होगा, चार्ज आपको पता होगा, फील्ड क्या होगा यहाँ पे B1, दिस वन आल्सो B1। वेलोसिटी भी क्या होगी, E/b के, ये भी नोन होगी। तो सिर्फ आपको क्या चाहिए, रेडियस। रेडियस आपको कहाँ से मिल रही थी, आप अगर एक्सपेरिमेंट करोगे, यहाँ से हमने बोला था मेरे पास क्या होगा, इसको एक सर्कुलर पोर्शन, पूरा एक सर्कुलर बना के देखोगे तो यहाँ से कोई ना कोई रेडियस मिलेगी। तो हर पार्टिकल की क्या होगी आपके पास, डिफरेंट रेडियस शो होगी। इसका मतलब मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ कि मास क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, रेडियस क्या आएगा। मास और रेडियस क्या होंगे, दोनों क्या होंगे आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जितनी ज़्यादा मास है उतनी ज़्यादा क्या होगा आपके पास उसकी रेडियस, या फिर मैं बोल सकती हूँ जितनी ज़्यादा रेडियस मिलेगी उतना ज़्यादा क्या होगा उसका आपके पास मास मिलेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, यहाँ से r से। इसका मतलब अगर मैं एक्सपेरिमेंटली यहाँ से इसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकती हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, इसका मास भी क्या होगा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या था आपके पास, वेन ब्रिज स्पेक्ट्रोग्राफ। एक बार इसका डायग्राम दोबारा से बता देती हूँ। मेरे पास क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, डिस्चार्ज ट्यूब से पॉजिटिव आयन का बीम आएगा, S1 S2 स्लिट से काम करेगा, पास करेगा। इसका काम है फाइन बीम प्रोवाइड कराना, कोलिमेट करेगा इसको। तो मेरे पास यहाँ से क्या होगा, एक फाइन बीम पास होगा। उसके बाद ये हमने वेलोसिटी सिलेक्टर लगा रखा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरे पास नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इनकी हेल्प से मिलेगा, और जब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके हेल्प से क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो गए। उसके बाद क्या होगा, और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर प्रोवाइड कर रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा आयन को, ताकि क्या करे वो एसिलेट करेंगे वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी सिलेक्टर तो कोई ना कोई वेलोसिटी को सिलेक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डायरेक्शन किसको शो करेगा, राइट से लेफ्ट की, और मैग्नेटिक फील्ड अभी बताया था क्या होगा, अपोजिट, लेफ्ट टू राइट। तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे P1 P2, ये क्या होगी, दो इलेक्ट्रोड आ गए यहाँ पे। उसके बाद मेरे पास यहाँ से कंडीशन मिली थी V इजिकल टू E/B। तो मेरे पास S3 से क्या होगा, वही पार्टिकल पास होंगे जिनकी वेलोसिटी क्या होगी, E/B के इक्वल होगी। जिनके मेरे पास जो फर्दर पार्टिकल वो क्या हो जाएंगे, डेविएट हो जाएंगे पाथ से, और मेरे पास क्या होगा, अनडेविएटेड अनडिफ्लेक्टेड क्या होगा, S3 से क्या होगा, पास करेंगे। अब जब ये S3 से पास करेंगे, यहाँ पे क्या कर रखा है आपने, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रखा है। एक यूनिफॉर्म फील्ड है कि हर जगह पे क्या होगा, सेम फील्ड मिलेगा। ये क्या करेगा, इसको एक सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करेगा। तो मेरे पास क्या हो गया, क्या होगा, सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पे क्या लगा दिया, फोटोग्राफिक प्लेट। तो ये पार्टिकल क्या होंगे, यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे। तो जब पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे तो क्या हो गया, कोई ना कोई क्या है, डिस्टेंस है, इसको क्या होगा, एक सर्कल कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से क्या होगी, इसकी इजिली क्या होगा, रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ से क्या होगी, रेडियस मिलेगी इसकी, ठीक है। अब हमें रेडियस को और मास का रिलेशन चाहिए। हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे क्या था, हमने बोला था मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे अगर कोई भी
पार्टिकल सर्कुलर में मूव करेगा तो उसका क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो mv²/r के इक्वल होगा। और इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स हमने प्रोवाइड कर रखा है। इसका मतलब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड या फिर बोल सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल। यहाँ से क्या हो जाएगा, मास और एनर्जी का रिलेशन मिलेगा। इसका मतलब जिसकी भी आपके पास क्या होगी रेडियस, जैसे मेरे पास ये वाली है थर्ड वन, इसकी रेडियस क्या है, ज़्यादा, इसका मतलब इस पार्टिकल का मास भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसकी रेडियस कम है, इसका मतलब इसका मास क्या होगा, एज कम्पेयर टू दिस कम होगा। देन दिस मतलब जितनी ज़्यादा रेडियस उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका मास मिलेगा। ओके, थैंक यू।